प्यारे अफजल, बेहतरीन मोहब्बत की दास्तां। इस कायनात में इंसानियत का मुल्क है तो मोहब्बत है। इस मोहब्बत की दास्तां है प्यारे अफजल। I do not miss Bangladeshi prose. I do not miss Pakistani drama. I have spent almost 6 years in Meerut since 1984 to 1990 as a professional journalist, and the people from erstwhile Punjab, they used to see the videos of Pakistani drama. Since then, I am a fan of Pakistani drama. I could not see every episode live, but I managed to see it in my leisure time. I am overwhelmed by the love. It is the chemistry of love in detail. The girl could not realize that she also loves Afzal as much as Afzal is Diwana Majnu for him. At the last moment, when she realizes it was too late. It is the chemistry of love. At the same time, while living Hyderabad, he lands in Karachi and becomes the Don there. His making the Don and the Hukumat involved in protection, it is the physics of crime. It is the phenomenon of crime. At the same time, it is the phenomenon of terror. Sorry. It is still hot in Kolkata, and I had to use the fan, and let me have some chat with you. Yes, here you are. Let me adjust the webcam so that you may see my face when I discuss it. प्यारे अफजल, chemistry of love, physics of crime, mafia raj across the borders. We know in India it is muscle power, it is money power. We choose our representatives just because they have got muscle power or money power. The criminals rule us and they protect the criminals, and it is the phenomenon of crime. I have discussed ISIS bit to bit, and I have discussed in my earlier video how CIA and United States of America created ISIS as it created Taliban and Al-Qaeda. At the same time, I have discussed how ISIS got the money, the weapons from Israel,
and how Israel and G20 nations also get the illegal oil from Middle East, oil resources for which the developed nations led by United States of America, Israel and United Kingdom launched the oil war on the basis of official version of the story, the weapons of mass destruction to eliminate Saddam Hussein. And after the demise of Saddam Hussein, after the killings of no less than 35 million people in Iraq itself and some thousand soldiers, marines from America itself, we came to know that there was no weapon of mass destruction. It is Arabian Spring from Middle East, from Arab, which has inflicted India today. Indian politics and the Arabian Spring, the agenda of occupy the global order, the religious polarization, the caste war, the Mahabharata, the Kurukshetra, the Hindu-Muslim divide, the North-South divide, the exclusion of untouchable geography of the Himalayan region, the Northeast, Central India and even South India. It involves the phenomenon of partition, and this is to sustain the Jamidaris and Riyasate which was produced by permanent land settlement by East India Company. And it continues. The story is same all over the geopolitics. I have been insisting, and I am using Pyare Afzal, the chemistry of love as well as the physics of crime and the phenomenon of mafia raj across the border. It is it. I hope many of you have enjoyed Pyare Afzal and you would get it. Pyare Afzal, it is a love drama. Writer Khalil-ur-Rahman Qamar, director Nadeem Beg, and originally it was a 37 episode serial in Pakistani, and Hamza Ali Abbasi played the lead role Afzal, the Sidha Sada Pakistan, the love lady, the lady personified love, the Farah is played by Aija Khan. Sana Javed is Lubna, the sister speaking wisdom. Suhail Ali Abro, who is introduced to sacrifice because Afzal became the Gunda, the mafia don, just to protect her, and she is madly in love with Afzal. Then it is Suhail Ali Abro Yasmin, Sabah Hamid, the mother of Afzal Ruqayya, and Firdaus Jamal, the Maulavi Subhanallah, the excellent role, and Sabah Faisal has played the Irsa.
किसी भी माध्यम में और विधा की किसी भी रचना की परख हम सामाजिक यथार्थ की कसौटी पर करते हैं, उसी मुताबिक जरूरी हुआ तो उसकी चीड़ फाड़ करते हैं अगर उसके संदर्भ और प्रसंग से हमारा समय किसी न किसी रूप में प्रभावित होता है। हम इस महादेश के भूगोल और इतिहास की विरासत साझा मानते हैं और मजहब और सियासत के दायरे से बाहर जन संस्कृति की जड़ों को टटोलते रहते हैं, क्योंकि हम मसलों और मुद्दों को किसी सीमा में, सरहद में बांधकर देखने के अभ्यस्त नहीं है। इस महादेश के सारे टुकड़ों की लोक विरासत में अपनी जड़ें खोजना हमारी आदत है। इसीलिए बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, नेपाल हो या श्रीलंका, भूटान हो या म्यांमार या अफगानिस्तान, चीजों को हम अपनी नजर से परखते हैं तो विरासत की खुशबू को भी स्पर्श करने की कोशिश भी होती है। चीजों को हम अपनी नजर से परखते हैं तो विरासत की खुशबू को स्पर्श करने की कोशिश भी होती है। ये जो मोहब्बत है, इसकी दास्तां बहुत लंबी है। लैला मजनू ये हमारी बटी हुई विरासत है। सीरी फरहाद, सुहानी माहिवाल, ये बटी हुई विरासत के किस्से हैं। तो मोहब्बत आखिर क्या होती है? मोहब्बत वही है जिसके कारण पैराडाइज लॉस्ट है। आदम और ईव की रचना की ईश्वर ने और कहा वह निषिद्ध जो फल है, फॉरबिडन फ्रूट, उसको न चखे। उसको यू के भड़कावे पर आदम ने चख लिया। इट इज द ओरिजिनल sin, and this original sin is love. We love and we are sinned, and so we are predestined to suffer, and Afzal is predestined to suffer, so Farah is also predestined to suffer. It is the chemistry of life which sustains humanity, which involves the human anatomy, the genitals, and we survive generation after generation just because of that fundamental love. And in spite of this, man and woman often, perhaps more than often, live without love. Those who love someone else and could not reveal their love, could not pronounce I love you to his love word, are most unfortunate men and women, because they have to spend their life, their sex life, just like animals without any love whatsoever. Afzal and Farah are fortunate enough at last in the climax
they could speak each other the final love, the final phrase, I love you. Let us ask ourselves, could we speak these words to our loved world, lost or found? I love you. It is the story all about the letters written by Afzal, and claimed that those letters written by her lady love, and this drama is all about to win the lovebird फरहा इब्राहिम। हम पाकिस्तानी ड्रामा के उतने ही शौकीन हैं जितने बांग्लादेशी साहित्य के या भारतीय फिल्मों के। इस महादेश के सारे टुकड़ों की लोक विरासत में अपनी जड़ें खोजना हमारी आदत है। इसीलिए बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, नेपाल हो या श्रीलंका, भूटान हो या म्यांमार या अफगानिस्तान, चीजों को हम अपनी नजर से परखते हैं तो विरासत की खुशबू को स्पर्श करने की भी कोशिश होती है। और ये जो मोहब्बत है, ये इंसानियत की विरासत है। इसी मोहब्बत में वजूद है इंसानियत का, क्योंकि ये जो कायनात की रहमतें, नियामतें, बरकतें हैं, वो मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। मोहब्बत के सिवाय कुछ भी नहीं है। यकीनन इस देश के बिखरे बटे टुकड़ों को महसूस किया बिना हम मसलों और मुद्दों को संबोधित कर नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। पाकिस्तानी ड्रामा प्यारे अफजल ने पाकिस्तान में कोहराम मचाया हुआ है। 2013 से यह सिलसिला जारी है और हाल में भारत में उसका प्रदर्शन भी काफी लोकप्रिय रहा है। वर्गीय दृष्टि से एकदम अलग प्रेमी प्रेमिका की प्रेम कहानी है। दिस इज द लव स्टोरी ऑफ द lovers who belong to vertically divided humanity. It is the class divide. The girl is the daughter of a prominent mill owner in Hyderabad in Pakistan, and the lover is a सीधा साधा पाकिस्तानी बेरोजगार नौजवान जो जुए पर सट्टा लगाता है और उसका मौलवी बाप उसके लिए उसके खिलाफ फतवा जारी करता है, जो मुश्किलात में किसी तरह खींच खाच कर भी ये पास करता है और मोहब्बत के ख्वाब देखता है फरहा इब्राहिम के लिए। फरहा इब्राहिम को फतह करना जिसकी जिंदगी का मकसद है, यह उस प्यारे अफजल की दास्तां है। वर्गीय दृष्टि से एकदम अलहदा प्रेमी प्रेमिका की प्रेम कहानी है प्यारे अफजल, जहां प्रेमी मरते दम तक कह नहीं पाता कि जो खत मोहब्बत के उसने खुद को लिखे हैं बचपन से जवानी तक, वे उसी प्रेमिका को संबोधित है। और बेपनाह मोहब्बत के बावजूद रईस प्रेमिका मौलवी सुभान अल्लाह के बेरोजगार गरीब बेटे से बुरा सलूक करती रहती है, जिस कारण वह कराची का
का सबसे बड़ा गुंडा बन जाता है, सबसे बड़ा गुंडा। মুন্নাকে গলিতে একলা পেল, কুতকের গর্জন শুরু হলো, তখন মুন্না বলল, জাস্ট চিল ব্রাদার, দম থাকলে আয় অনলাইনে। It's a market, we have to bear with it. হুজুর হেচকি মানে বুঝে নাও বসের চুলকানি। Wait some second, wait some second. নট হিয়ার, অনলাইনে আয়। এখন অনলাইনে পাবেন ইন্ডিয়া, কারণ এয়ারসেলের প্রতিটি নতুন কানেকশনের সাথে পাবেন বেসিক ইন্টারনেট সার্ফিং ফ্রি। খবর দাদা। मुझे से कहा था दिल की सारी बातें दिल वालों के पास अमानत है। तो सुनकर ही हैरान रहती, ऐसा बेवकूफ आदमी ऐसी बड़ी बात भी करेगा। तुम जैसे किसी लड़के को फरा से मोहब्बत हो जाएगी तो हम फरा को फिराक की तरह उसकी झोली में डाल देंगे। सच बोलो, मैं तासे शादी कर लूं। कितने पैसे लोगे और जान छोड़ दोगे उसकी? वो मेरा दोस्त है बबलू, वो कहता है कि मैच जीत जाओ और पैसे लेते हैं, और आप कह रही हैं कि मैच हार जाओ और पैसे। प्यार भरी आवाज हो या खत के अल्फाज, दिल की बात दिल तक पहुंच ही जाती है। प्यारे अफजल, जिंदगी पर। मेरी अंगूठी वापस करो। मैं अफजल से मोहब्बत करती हूँ रमना, तो बताओ फिर मैं क्या करूँ? सत्यन को फोन करो, कहो कि अफजल से शादी नहीं करो, और बताओ तो फिर किस वजह से बात करनी? वन साइडेड मनी चल रही है, उस हिसाब से मेरी मदर इन लॉ लगती हैं आप। अंकल कहाँ है? मैं मिल लेती हूँ ना। लड़के भी पागल होते हैं, ऐसे ऐसे से मोहब्बत कर लेते हैं। मेरी औकात नहीं है तुम्हें फरा से मोहब्बत करना, लेकिन फरा से मोहब्बत करने का हक है मुझे। पहली दफा देखा था तो लगा मर्द का बच्चा है, अब देखती हूँ तो लगता है ना बच्चा है ना मर्द। प्यारे अफजल, जिंदगी पर। प्यारे अफजल, जिंदगी पर। प्यारे अफजल, तुम्हें देखती हूँ तो लगता है कि जीने लगती है। बस 2-4 मिनट के लिए मिलने आते हो। कब होगा कि रात भर मेरे सामने बैठे, कब होगा अफजल और कैसे होगा? प्यारे अफजल, जिंदगी पर। दिसंबर को फरा की मेहताब चादर से शादी हुई। अब हकीकत ये है कि फरा उससे शादी नहीं करना चाहिए। क्या करना होगा? 4 महीने तक फरा से मोहब्बत की एक्टिंग करनी होगी।
प्यारे अफजल जिंदगी पर। मैंने आपको कुछ प्रोमो दिखाए जिससे आपको स्टोरी का आइडिया हो गया होगा। यह ड्रामा इस बेपनाह मोहब्बत की बेचैनी और कारनामों का जखीरा है और इसे पेश भी किया गया है बिल्कुल उसी तरह मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहानी को निपटाया गया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहानी को निपटाया गया है और इसके साथ साथ पाकिस्तान में अपराध तंत्र माफिया तंत्र को बेरहमी से एक्सपोज किया गया है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान में अपराध तंत्र माफिया तंत्र को बेरहमी से एक्सपोज कर दिया गया है। यह ड्रामा प्रेम का रसायन शास्त्र जितना है उससे कहीं ज्यादा सियासती मजहब और मजहबी सियासत का किस्सा है तो उसका भौतिकी शास्त्र भी है। कराची और लाहौर के साथ साथ अक्सर कश्मीर की सरजमी पर केंद्रित पाकिस्तानी ड्रामा भी विदेशी कथा और जीवन शैली से बेतरह उतना ही प्रभावित है जैसा कि हमारी फिल्में और सीरियल। प्यारे अफजल लेकिन विशुद्ध पाकिस्तान की देसी कथा है, एकदम देसी प्रेम कथा है। जैसे देहात भारत में अब भी मोहब्बत का इकरार करना मुश्किल होता है। जिंदगी बीत जाती है, जिंदगी बीत जाती है, लेकिन जुबान पर मोहब्बत के अल्फाज आते नहीं है और जब तलक आते हैं दुनिया जहां बदल जाती है। और जब तलक मोहब्बत के अल्फाज जुबान पर आ जाते हैं दुनिया जहां बदल जाती है। इस ड्रामा के प्रदर्शन के सिलसिले में पाकिस्तान और भारत में भी मोहब्बत की इस दास्तां पे खासा जोर दिया गया है और कैसे मामूली से नौजवान ने अपनी महबूबा का दिल जीत लिया और उसे फिर कहना पड़ा कि सारे खत उसी ने लिखा है। पब्लिसिटी में इसी पर फोकस है। फिर कभी भारत पाकिस्तान के रिश्ते की तरह यह मोहब्बतनामा लहू लुहान है, फिर भी कभी नहीं। फिर भी भारत पाकिस्तान रिश्ते की तरह यह मोहब्बतनामा लहू लुहान है। एक बंटवारा वहां है, एक बंटवारा यहाँ है, एक बंटवारा सरहद का है, एक बंटवारा दिल का है, मोहब्बत का बंटवारा है। यही है प्यारे अफजल। बिना राष्ट्र के संरक्षण के कोई अपराध कर्म, कोई अपकर्म या आतंक की वारदात संभव है नहीं। असल किस्सा प्यारे अफजल का यही है जिसमें भारत और पाकिस्तान की सरहद एकाकार है। मैं वो एपिसोड भी आपको दिखाऊंगा। आई हैव ऑलरेडी सेड अबाउट द ओरिजिन ऑफ आईसिस एंड इजराइल जॉइंस आईसिस and here is the cop. Get it? He is the mafia don now. Selfie. He had become the mafia don
He has called his friends from Hyderabad states. He and his friends rule जोर का थप्पड़ पड़ा है मुंह पर। आज से नमाज कोई और पढ़ाया करेगा। वहाँ नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? अब्बा ने फतवा दे दिया होगा उसको। अब वो फतवा नहीं देते। शादी नहीं करोगी क्या? वो कमीना जब तक भाई है शादी नहीं हो सकती। जिस दिन भाई नहीं रहेगा ना उस दिन आएगा नहीं। अब्बा ने हाँ कहती कि तुम भी अच्छी बेटे की तरह कहते ना कि जैसे अब्बा की मर्जी। मुझे भी हाइट होगी लेकिन मैं यहाँ से कूद कर मर जाऊंगी मगर आपसे शादी नहीं करूंगी। This is the palace. This is the Mazar. Yasmin prays for her love for Afzal, the Gunda, the Mafia, the Don. The helpless mother of Yasmin. यास्मीन के दिल में भी मोहब्बत की आग लगी है। इश्क वाजिब हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। 7 दिन लगातार आओगी तो बात बनेगी। आऊंगी बाबा जी, बात बनेगी तो मैं बनाती रहूंगी। इतनी लगन उससे भी लगाना। नमाज पढ़, सजदे कर, ये तो इसी बात पर खुश हो जाएंगे। पढ़ूंगी बाबा जी। तो फिर आंसू पोंछ दे। उससे रोकर मांगते हैं, मांग कर नहीं रोते। जा। She is the other girl. In this episode, Yasmin visits a shrine and earnestly prays to reunite with Afzal. Meanwhile, Afzal is irked when Najudanon tells him
that of all murders he had committed, there were few innocent people too. Afzal kills Najju and later tells Bablu that he wants to make the city free of Afzal kills Najju, the Don, and later tells Bablu that he wants to make the city free of gangsters. On the other hand, Farah comes to meet Arifa and while talking casually tells her that she is getting married. Later Afzal meets the cop who has assigned him to eliminate the criminals from the city. Pyare Afzal and ये अफजल भाई, यहाँ से यहाँ तक का इलाका आपका है। यहाँ से यहाँ तक का ये बीच का 10 किलोमीटर का छोड़ के फिर अगला 10 किलोमीटर आपका। तो ये बीच वाले 10 किलोमीटर को छोड़ दिया। ये मेरा इलाका भाई। ओ आगे आगे दूसरे लोगों की हुकूमत है भाई। पन्ने खान रहमत बुलाओ। it is the same story in Mumbai. It is the same story in Kolkata, वैसे in Karachi, everywhere in the geopolitics, in Singapore, in Kuala Lumpur, अच्छा बताऊँ in Dubai, everywhere. इनको मारते हुए तुम्हें पता है It is not इस काम में तरस वाला कोई। divided अच्छा चलो इतना तो पता हो। administratively. The criminals, the gangsters, the mafia, the ये क्यों Dada, the Bhai, they divide and they rule the parts of metros, the मेरे ख्याल है कि business hub, the business capital. It is the same story as in Pakistan and India. अरे हमारी जिंदगी में अगला दिन कहाँ होता है नसीब है। सो गए तो मर गए, जागे तो जिंदा। सही कहते हो भाई। अब्बा कहा करते थे कि गुंडे की उम्र 30 या 35 साल से ज्यादा नहीं होती। या वो 30 से 35 साल के बाद गुंडा नहीं रहता या फिर वो जिंदा नहीं रहता। 2 बज गए। मैं चलता हूँ भाई, बाय। वैसे नजू भाई, जी भाई, कितने के हो गए? 30 के या 35 के? 35 का भाई। तो फिर गुड बाय बोलूं? गुड बाय। मंजू बड़े काम का आदमी है। काम का आदमी होता है यार, लेकिन काम बड़े गलत है उसका। 4 तो ऐसे लोगों को मारा उसने जो बेकसूर थे। तो परेशान क्यों है? परेशानी की बात तो है यार। आज इस शहर का नक्शा देखा। इस शहर का कोई ऐसा टुकड़ा नहीं जहां गवर्नमेंट की हुकूमत, टुकड़ों में बटा हुआ है शहर गुंडों की मलकियत। Rule of law is absent from every city, every metro. ये सिर्फ पब्लिक के लिए ट्रैफिक सिग्नल है। Traffic signal meant for the public. सिग्नल तो Rule is meant for the public. गुंडे का नाम भी
मेरी अब्बा से बातचीत नहीं हो सकती, वरना उनको मैं शहर का नक्शा दिखाकर कहता कि मुसलमान तो खसारे में है, हुकूमत तो काफिर कर रहे हैं। गोली मंगवा ली है मैंने, The mafias, the gunda, के साथ रखिए। they govern the methods, business, politics, and nations, and we follow them. कल ही मैंने इसीलिए गधा पुराण लिखा बहुत दिल करता कि गधा दुलस्ती भी नहीं मार सकता। है, गलियां बहुत याद आती हैं। और we are so afraid, we are so silent, we bear everything and bear with me. भैंस का बकरी। It is a real time story. हैदराबाद आज भी It is not drama. फैसला करो, निकल It is reality. मैं फैसला कर भी लूं तो नहीं निकल सकता। It is the reality. मुझे लगता है कि मैं इस काम के लिए यहाँ आया हूँ। किस काम के लिए? 16 मर्डर करने वालों का मर्डर करने के लिए। खुदा की कसम, अगर तो 30-35 साल का नहीं हो जाता हूँ, चुन कर मारूंगा इन सालों। Yasmin is praying. Yasmin is praying for peace, for love. Late in the night, and her mother is afraid, helpless. It is humanity. It is the humanity which suffers at the last. फरार, अरेस्ट, अफजल्स हाउस। रात से जी करे तो तुमसे आकर मिलूं, फिर सुबह सुबह ही आ गई। आ जाओ। Her eyes are ठीक wide, है ना? searching for अफजल। मौलवी अंकल तो घर पर ही होंगे, अब वो घर में ही होते हैं। खैर ये तो तसल्ली हो गई कि वो जहाँ भी है तो खुश। She visits अफजल्स हाउस डेली। आंटी को सलाम। दिल अफजोई करने के वास्ते रोज पहुंचती है अफजल के घर फरार। मदर रुकैया बेगम। ऐसी कोई हैरान होने की जरूरत नहीं। अम्मी की हालत देख के उनकी दिलजोई करने को दिल करता है, लेकिन वो कहते थी खबरदार कोई मुझे तसल्ली दे ना मेरी दिलजोई करे। लुबना कैसी है? वो गम से दूर रहती है, इसलिए खुश रहती है। उसे तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आ गई हूँ। उसकी कोई इत्तला खबर मिली? ऐसे किसी के मुंह से सुनाओ कि वो क्या कर रहा है। तुमने खोज लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब किसी न किसी अखबार में आ जाती है उसकी तस्वीर के साथ उसके कारोबार की तस्वीर। कल किसी नज्जू नाम के भाई को मार दिया है उसने। अरे तुम तो डर गई। अब्बा भी डर गए।
लेकिन वो इस बात से डर गए हैं कि लोग अब उनसे डरने लगेंगे। मैं कहती थी ना, कराची जाएगा तो बुरी सोसाइटी में पड़ जाएगा। वही हुआ ना। तुम उसकी बात छोड़ो, तुम बता क्या पियोगी, चाय या कॉफी? वो भी सुधर सकता है आपा। अरे नहीं, जो मर्डर कर देते हैं उन्हें सुधारने का कोई फायदा नहीं होता। वो जेल जाते हैं या फांसी चढ़ते हैं। पहले मर्डर का सुन के अब्बा ने जोर से आंखें बंद कर, फिर जब्त करके कहने लगे अब वो नहीं आएगा ऐसा, खबर आएगी एक दिन। तुमने बताया नहीं, चाय लोगी या कॉफी? तुम कितने आराम से कर देती हो इस तरह की जानने को बातें। बड़े नामवर भाई की बहन, कराची में डंके बजते हैं उसके। अच्छे से करूंगी अब इस तरह की बात। चाय पी लो। नहीं पी जाएगी। किसी तरह से खतीफे वाली फरा को ढूंढो, हम रोक सकते होते। तुम मेरी बात का मजाक समझ रही हो? नहीं, मैं तो खुद कह रही हूँ, कम वक्त मिल जाए कहीं। मिलेगी तो क्या कहोगी उसे? कहना क्या है? बैठकर समझाऊंगी कि जाओ पढ़िए, शादी कर लो किसी अच्छे लड़के से, घर बसाओ अपना। अब तो जहाँ पहुंच के आए वहां दिल की बातें नहीं पहुंचती। अब कैसे पहुंची? फिर अल्लाह करे कभी मिले तो उसकी शादी हो गई है, जा रही है अपने हस्बैंड के साथ। मैं तो पहचान भी दूंगी तो पहचान नहीं पाऊंगी। शादी हो रही है मेरी। किससे? तो अब्बा ने एक साइकियाट्रिस्ट ढूंढ दिया। पहले तो उनको लगता था कि मुझे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। मैं चली गई उसके पास तो पता चला कि उसको मेरी जरूरत है। मुबारक हो, खुश तो हो जाओ ना। अब्बा की पसंद से है तो अच्छा ही होगा। ये तो मैंने देखा है, खुद से ढूंढो तो बुरा ही मिलता है। शादी कब है? पता नहीं कब। अब्बा के इरादों से तो लगता है बारात आने ही वाली है। अम्मी अब्बा को इनवाइट मत करना, मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँ। तो अब मैं चलूं? सिर्फ अपनी शादी का बताने के लिए आई थी तुम? हाँ। इस तरह? हाँ, इस तरह। आंटी मैं जा रही हूँ। सो गई होंगी। रोटी रात को खाते हैं, सुबह नींद आती है। तुम्हारी बात ठीक लगी है मुझे। वो खतीफे वाली फरा मिल जाए तो उससे भी कह देना शादी कर लो, घर बसाए और खुश खुश रहे अपने हस्बैंड के साथ। वो वापस नहीं आएगा।
She is the sister of Afzal. अब्दुल भाई बैठिए, आ रहे हूँ। He is the cop, the police chief. चाय या कॉफी? कॉफी। Now the Don lands. Afzal the Don. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। प्लीज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मैं 2 महीने से पुलिस को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एतबार नहीं है आपको। देखिए भाई, पुलिस अपना एतबार दिखाने के लिए आपके साथ कोई डॉक्यूमेंट, Just listen to. आपने पुलिस को सपोर्ट किया तो 2 महीनों में किसी वर्दी वाले ने आपकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। लेकिन मुझे नहीं Note it. पता कि मुझे पैसे कौन देता और मेरे Note it. पैसे क्यों उठाए जा रहे हैं। पैसों के बारे में आपको कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके नखरे उठाए जाने की वजह मैं आपको बता देता हूँ। जिस टारगेट तक पहुंचने के लिए पुलिस और हुकूमती मशीनरी करोड़ों खर्च करती है और अदालती गालियां सुनती है, वो काम आप लाखों में कर लेते हो। सो एक्चुअली लेस इज बीइंग स्पेंट एंड मोर इज बीइंग सेव्ड। तो फिर पैसे हुकूमत दे रही है तो कहा है इस बात का पता नहीं चलेगा। चले फिर मेरे दूसरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। पूछिए, कितनी देर जिंदा रखेंगे मुझे? जितनी देर आप जिंदा रहना चाहो। झूठ। सियासत में अगर नहीं आओगे तो आखिर में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे और दूसरे ऑप्शन में कहा जाएगा पैसे लो और मुझ छोड़ दो। और पहले ऑप्शन में क्या कहेंगे? कहेंगे कलमा पढ़ लो। मैं मौलवी सुभान अल्लाह का बेटा, कलमा पढ़ता रहता हूँ। किससे बातें कर रही हो? अरे ये कोई सवाल है? थोड़ी कमीना, शर्म करो लुकना। एक कातिल से इश्क लड़ा रही हो, पकड़ा गया ना तो देखना पुलिस यहाँ भी आ जाएगी। डोंट टेल मी। And now जोर का थप्पड़ पड़ा है मुंह पर। आज से नमाज कोई और पढ़ाया करेगा। वहां नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? आज की रात खैरियत से कट गई तो सुबह कोई अच्छी खबर मिलेगी, बट दैट वाज नॉट मीन टू बेल विथ रिवेंज ऑन हिज माइंड। Afzal went ahead and settled the
score an eye for an eye, and with that one night his life changed forever. It is funny how we never realize the value of our relationships until they are gone. Although Afzal had befriended Babu Hamid fairly recently, he loved him like a brother and struggled with his loss. Pain is often an excuse we use to justify our actions. लाहौर वाले को ताना दिया था तूने, तो आ बेटा हैदराबाद वाले हिजड़े होते हैं क्या? And with that, Afzal was able to convince himself to do the deed. As much as we try to deny it, power corrupts as easily. Afzal's motive were not singular. He tried to negotiate a deal with Najju Bhai. Najju Bhai, who you ask? Well, Najju Bhai happens to be the bigger Bhai about town, or to put it simply, Wali's boss. Since we have yet another new character, I don't see this winding up anytime soon. With all this drama in forefront, let us not forget the back end. वो तो गया, अब समझो हम भी गए. With Maulvi Saab finding out that Afzal went after Wali, his world collapsed. Sometimes we try too hard to believe that there is good in our children, and we forget that all the horrors of the world are brought upon us by fellow men. We are quite capable of becoming monsters ourselves, or giving birth to them for that matter. When the realization dawns upon Maulvi Sahib that Afzal is a lost cause, he cannot bring himself to his imamat. जल्दी रिटायर कर दिया है मुझे, नमाज और वक्त दोनों हाथ से निकल रहे हैं. It was the dialogue of Maulvi Sahib. Never in his wildest dream did Maulvi Sahib, Subhanallah, imagine that his son would let him down this way. Yes, he gambled, occasionally smoked, was not exactly the proverbial good son, but Maulvi Sahib held on his faith that his son would one day live up to his name. Ruqayya Bibi was inconsolable. चला भी जाए तो खुशबू छोड़ जाता है अपनी, चला भी जाए तो खुशबू छोड़ जाता है अपनी. Try as many, we inadvertently end up expecting a lot of our children, and when they fail to deliver, nothing can ease the pain of the disappointment. After a time lapse, a month, I am amusing. Afzal has settled with his friends in Karachi. I am sure we have Najju Bhai to thank for that. Yasmin waits in anticipation for Afzal's return. वो जब तक भाई नहीं है, शादी नहीं हो सकती. And remember, Samina, she is being stalked by her ex Sajid again and it is the Kamal Murtaza wrote this review on Drama Pakistan. It is the human fabrics of Afzal, and I have to go for the final episode. It is the final episode, and if I get time, I would explain things. It is Pyare Afzal. It is Pak file, Pakistani file, direct from Pakistan.
ARY। शर्म नहीं आती कि वो तुमसे मोहब्बत करती है और आज वो उसको भूल गई है जिसे तुम मोहब्बत करती हो। आओ आपने यार खुदा के रास्ते पर चल पड़े हो तो कहाँ पहुंचे? कहीं नहीं पहुंचे। एक बस हैदराबाद फलांकर कराची गए थे तुम। अब यहाँ खड़े सोच रहे हो कि तुम हैदराबाद से गए नहीं हो या कराची से आए नहीं। कैसे हो मंगेतर? क्रिकेट खेलते हुए देखा था तुमने? जमकर खेलते हो यार। मत तो बस सुन लेंगे। याद है अभी बदतमीजियां हैं प्यारे। मैं कहाँ, तुम कहाँ? इससे तुम्हें गुस्से से ना देखे, गुस्से से मत देखो। क्यों की बात है? हाँ मॉल्टी अंकल के कोकोनट वाले बिस्किटों की खातिर और तुम्हारी अम्मी की खातिर उनको पड़ा में तुम दिखते हो। और तुम्हारी खातिर अब्दुल साहब मुझे तुम्हारी आंखों में रोना नजर आता है। सोचो तुमने मम्मी करके मेरा दिल रखी, अब मैं तुम्हारा दिल रखने के लिए मम्मी तोड़ देती हूँ। इससे कहिए अंकल कि ये अंगूठी वापस कर दे। आपको मेरी I have to wind up it as soon as possible. और वो वजू करके अब्दुल की घर गई थी और जाकर उसकी अम्मी से कहा था कि कुरान पर हाथ रख दी थी। वो क्यों कहा था? इतना बड़ा गुनाह कर रही थी तुम? Farah accepted that she wrote all those letters. या अल्लाह, मैं तेरे बहुत शर्मिंदा हूं। तुम भी माफ कर दो प्लीज। तुम जरा लिस्ट तो बनाओ और चेक तो करो कि किस किस से माफी मांगोगे और कौन कौन माफ करेगा तुम। अब तो तुम्हारे झगड़े पर मुक्का मारेंगे। अब मैं डट गई हूँ बदला, मुक्का भी खा लूंगी। और वो जो खुदा तुमसे पूछेगा उसका क्या करोगी? यासमीन ने लिया उसकी जिम्मेदारी, बोली कि दम तोड़ने और झूठ बोलने से सारे गुनाह को दूर कर लो। मैं ऊपर चाहूंगी कि माफ कर। रो रही थी वो बहुत, अब्दुल से बहुत प्यार करती है वो, वन साइड। और वो कमीना मुझसे प्यार करता है तो तुम पर कुर्बान हो गई वो। मैंने मना भी किया था, मैंने कहा कि तुम कर लो शादी उससे। You're so simple. लेकिन उसने कहा कि मोहब्बत में फुटवाइज बनो।
अगर मैं तुम्हारी जगह होती सबको पैर तले रोन देती। और ये बात तो तुमने फौरन ही सीख ली होगी, और देखते ही तुमने यास्मीन को पैरों तले रोन दिया। मैं अफजल से मोहब्बत करती हूँ रबना। तो बताओ फिर मैं क्या करूं? सत्यन को फोन करो, कहो कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँ। तुम कर लो ना, बेचारा है तो बहुत। वरना लोग कहेंगे ये लड़कियां बस बात पर चलाती हैं, बात को आगे नहीं बढ़ाती। कुर्बानी दे रही है तुम्हारे लिए। तो उसको बुलाओ, उससे कहो उसके ड्रेसेस आ गए हैं, आगे देख ले और तैयार होकर मेरे साथ। मम्मी कहाँ है? मेरे की दुकान पे उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उसको लेके आऊँ। जेवर पसंद करने के लिए? अरे हाँ भाई, आप आइए मेरे साथ। तुम जाके चीजों पर रखो। अब्बा बड़े तहम्मुल से काफी खबर सुन लीजिए। आपकी खबर? होता है तो थप्पड़ ऊपर मान लीजिएगा, फिर बाद में अम्मी से जाकर कहिएगा कि ये मेरा फैसला है, मेरा मतलब आपका। फरा के बारे में कोई बात मत करना, उसके बारे में मैं कोई खबर सुनना नहीं चाहता। प्रॉमिस अब्बा, फरा की तरफ से कुछ नहीं कहूंगी। किसी डरने की जरूरत नहीं। बताओ क्या बात? वो अब्बा वो सिप्तेन है ना? क्या हो सकता है? कुछ नहीं हुआ अब्बा, आप तहम्मुल से सुनिए ना। अच्छा अच्छा, बोलो। वो सिप्तेन अब्बा असल में मेरे लिए था, मतलब वो प्रपोजल लेकर मुझसे शादी करना चाहता था। क्या? आई स्वेयर अब्बा, लेकिन मैंने उससे कहा शादी एक शर्त पर होगी। इस शर्त पर? आपको गुस्सा आ रहा है ना? अरे नहीं आ रहा गुस्सा, तो अपनी बात बोलो। शर्त ये थी अब्बा कि वो फरा को बिल्कुल ठीक कर देगा। ठीक कर देगा? क्या मतलब? ये अब्बा ठीक हो गई, वो मान गई कि हर दुनिया अफजल को लिखा करती थी। आपके घर में कोई भी अफजल का नाम नहीं लेगा। वो पूरी बात तो सुनिए। ईर्षा ने इस तरह की कोई खबर सुनी तो खड़ी खड़ी मर जाएगी वो। मुझे सब पता है अब्बा। अब्बा मैंने आपका दिमाग का आलू बना दिया ना, लेकिन अब्बा इस बार गलती फरा की नहीं थी, ये आलू मेरी वजह से बने। अरे खुदा की बंदी, सिस्टम के मम्मी पापा क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे, उन्हें भी सब पता है। तो फिर उससे छुपाने की क्या जरूरत है? आपको एक्टिंग नहीं आती ना अब्बा, हमने सोचा नेचुरल परफॉर्म करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वो ठीक हो गई है। एकदम ठीक हो गई अब्बा। और तुम लोगों को ये नहीं लगता कि देर हो गई? मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बता, मैंने तुम्हें बाप बन के दिखाया है या दोस्त? दोस्त बनकर ऑफ कोर्स। तो फिर फरा से कहो कि कोई दोस्त भी उसे मशवरा नहीं देगा जो अफजल के बारे में सोचे। आप ही यास्मीन की वजह से कह रहे हैं ना, तो वो अब नहीं रही, मतलब वो मम्मी तोड़ रही है। अभी उसी ने तो आकर सारी बातें समझाई है फरा को। उसने कहा कि मम्मी तो बिल्कुल वैसी थी जैसे सिप्तेन और फरा की शादी हो रही थी, वो जरा सीरियस थी, लेकिन अब तो फरा से रिवेंज ले रहा था। रिवेंज मतलब फरा की मम्मी थी ना उस दिन, तो जलन के मारे उसने भी वही डेट रख दी। वो कराची में 12 मर्डर करके आया लोग ना, उसका हिसाब देना पड़ेगा उसे।
वो ले लेगी ना हिसाब अब्बा, पूछ लेगी कि क्यों किया तुम मर्डर। फिर उसके पास भी तो होगा कोई जवाब, नहीं होगा तो सॉरी बोल देगा। इस तरह सोचने दीजिए ना अब्बा। अब वो आ गया है, हैदराबाद में क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट खेलने दीजिए उसको। मर्डर के बारे में बात मत कीजिए। ये लिखिए और भगवान से ये मत आइए, फोन पर बात किया करेंगे ना। मैं तो कभी बात नहीं करूंगी तुमसे। और बताओ तुझे फिर से बात करूँ, रिश्तेदारी है आपके साथ, वन साइडेड मंगनी चल रही है, उस हिसाब से मेरी मदर इन लॉ लगती है आप। 50-50। मैं मिल लेती हूँ ना। मैं हूँ अंकल यास्मीन, अंदर आ जा। तुम तो पैर भी नहीं रखना कमरे में। मैं नहीं मिलना चाह रहा तुमसे, हर दिन नहीं। इजाजत दे दीजिए ना प्लीज। मैं कहीं भी जाऊंगी तो आपको बोलने रहूंगी। जब भी उसको अपने ट्रॉली को देखा करेंगे, दुआएं दिया करेंगे मुझे। मुझ तरह की दान कीजिए, करना जाने दीजिए। मुझे जाना ही होगा। इजाजत दे देंगे तब भी, इजाजत नहीं देंगे तब भी। तुम दोनों, वो भी कहीं आया और तुमसे भी कहानी लिया। मैं तो कभी नहीं कहूँ। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार था।
ये जा रही है ना कि फरा मुझे खत लिखती थी। सच बताओ, वो मुझे खत नहीं लिखती थी, वो खत खुद लिखता उसके नाम से। मुझे नहीं, मैं इसलिए नहीं जा रही, मैं तो इसलिए जा रही हूँ कि वो कमीनी तुमसे मोहब्बत करती है, इतनी मोहब्बत करती है कि जबान से कह नहीं सकती, कहने लगी तो खूब खूब कर रोने लग गई। क्यों आए हैं और हंस क्यों रहे हैं? खुश हो रहे कि सत्यन की शादी तुमसे नहीं हुई। चलो चलो, मैं उस घटिया साइकियाट्रिस्ट से शादी करूंगी। उधर क्या देख रही थी? अफजल जा रहा था यास्मीन को लेकर। देखो तो कैसे एकदम आंखें फेरी उसने, जाते हुए मिलकर भी नहीं गई। इस तरह खुश होकर बात ना करो, यहाँ से रोकर गई है वो। अब जैसे तुम्हारी शादी हो जाए तो 12 नफल पढ़कर दुआ देना उसे। अफजल से बात नहीं, अब भी बात नहीं करोगी? उससे कहो ना वो बात करे। इन्हीं बातों में फंस गए तुम दोनों। वो भी कहीं पाया और तुमसे भी कहा नहीं गया। मैं तो कभी नहीं कहूँ। तो ठीक है, शादी तक का इंतजार करो, फिर देखने कैसे पत्थर बोलने लगोगी। कहाँ जा रही हो? नीचे जा रही हो। तुम्हारी शादी की डेट फिक्स हो रही है। अपन ने कहा इस संडे को निकाह होगा, अगले संडे को शादी हो। अब मर्जी अंकल ने तो बात ही नहीं की। उन दोनों में तुम दोनों जैसे मामले नहीं है। एक ही रास्ते मेरे भाई से प्यार करती थी, पर मेरा भाई फरा से प्यार करता। उसको देखकर लगा कि प्यार अगर वन साइडेड हो तो वो प्यार से कुछ ज्यादा होता, पर ये नहीं पता चलता कि प्यार अगर प्यार से कुछ ज्यादा हो तो क्या हो। फार्म भर गए है ना? हाँ, 12 बजे का अलार्म क्यों लगाया? मैंने हिसाब रखा था कि 12 बजे पहुंच जाएगा। पहुंच गया होगा। कल इब्राहिम साहब की तरफ चलेंगे। लाए क्या मैंने? ये कैसी बात करती हो रुकैया बेगम? वो लड़की वाले हैं, वो क्यों बुलाएंगे भला? जाएंगे ना, झोली फैला कर कहेंगे
मेहरबानी फरमाइए, थोड़ा हमें दे दीजिए। यास्मीन, यास्मीन को तुम्हारा घर आ गया। थैंक यू। सुनो, अंदर आने के लिए नहीं करूंगी। अंदर आओगे तुम्हारा दिल आ जाएगा मुझ पर। माफ कर दोगी ना मुझे? फरा को फोन किया, फोन करो उसे, उससे बताओ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। है उसी वक्त माफ कर दूंगी। अपना ख्याल रखो। सुनो, कभी कराची आओ तो मुझसे मिलने मत आना। फरा को फोन किया, फोन करो उसे, उससे बताओ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। है उसी वक्त माफ कर दूंगी। प्यारे रखो। तुम्हें पता है दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? अच्छा तुम गैस मत करो, मुझसे सुनो। दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि फरा इब्राहिम तुमसे प्यार करती है। हेलो, अफजल, बोलो अफजल। बोलो ना, चुप क्यों हो गए? अफजल,
এদিকে এসো, এদিকে এসো। सर नाम की चीज तो जानते हो तुम? खड़ा चलो यहाँ से। अरे हाथ तो छोड़ो, ये बाप का राज नहीं है। तुम्हारा मंगनी वाला प्लान फेल हो गया तो बदला लेने के लिए रास्ते में खड़े हो जाते हो, लोगों को आशिक बन के दिखा रहे हो, सबने बदनाम करना चाहते हो मुझे। मौलवी सुभान अल्लाह के बेटे हो, तो मुझे लगा उस दिन की बेइज्जती के बाद 8-10 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलोगे। शर्म से डूब मरोगे या फिर मुंह छुपाने के लिए हैदराबाद छोड़कर चले जाओ। हेलो, फरा बोल रही हूँ। वो तो पता है। फोन कर दिया था। हाँ, कर दिया। तो क्या कह रहे थे तुम? कह रहा था कि हमेशा यही करते हो तुम, या तो तुमसे बात नहीं होती या फिर पूरी बात नहीं होती। बोलो, मैं सुन रही हूँ। ये परा कह के बात करोगे ना तो देखना पर बोलने लगोगे। बोलो, बताओ। फोन क्यों किया था? खत वाली बात करनी थी आपसे। आगे बोलो, खत वाली बात से भी आगे। लेकिन मैं अच्छा चलो, बात मैं शुरू कर देती हूँ, लेकिन फिर तुम बात पूरी कर देना। ये सारे खत मैंने लिखे थे तुम्हारे लिए, तुम्हारे नाम। झूठ। सारे खत मैंने अपनी तरफ से लिखे, आपके नाम। सॉरी। सॉरी क्यों कह रहे हो? ठीक कहा था तुमने, लिख लिए तो लिखिए। आगे बोलो। ये जो तुम बीच में लंबे लंबे पॉजेस लेते हो ना अफजल, ये कुछ ठीक नहीं है।
इससे पहले भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अरे भाई मर्द बनो, साफ साफ कह दो कि तुम प्यार करते हो मुझसे। वही तो क्या? प्यार करता हूँ। बहुत। लेकिन फर्क प्यार से परा मत बोलो, सुनकर मर जाऊंगी। ये लो, फिर चुप हो गए तुम। अच्छा सुनो, खत लिखा है तुम्हारे नाम। सचमुच लिखा है अफजल। कल रात में डालूंगी तो परसों तुम्हें मिल जाएगा। अब ये मत पूछना कि क्या लिखा है, बस ऊपर प्यारे हमसे लिखा है। तुम तो बेशर्म हो बहुत, फट से मुंह पर कह दिया कि प्यार करता हूँ बहुत। अब मैं तो लड़की हूँ ना, मुझे सोचना पड़ता है। सोच कर लिखा है बहुत। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी। तुम रस्ते में हो ना?